Hi everyone. So I remember that in the month of January 2025, a lot of students were asking, "Sir, अभी बहुत सारा time है, so please give us a strategy, a timetable, so that we can start preparing from today." So I gave you a 6 months timetable, right? ये मान के कि जून में नोटिफिकेशन आएगा, तो मैंने आपको 6 महीने का एक सुंदर सा टाइम टेबल बना के दे दिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. अब 2 महीने बीत गए. नाउ द मंथ ऑफ, इनफैक्ट 3 महीने बीत गए. नाउ द मंथ ऑफ मार्च इज अबाउट टू एंड. नाउ द क्वेश्चन हैज चेंज्ड. क्वेश्चन क्या हो गया है? मैंने अभी तक तो पढ़ाई शुरू नहीं करी है. कैन आई स्टिल क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड दैट द नोटिफिकेशन will be out in the month of June? And you know what, after 2 months और 3 months में भी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर क्या होगा? यार अब तो मैं लेट हो गया, अब तो मैं लेट हो गया. नाउ लेट्स फोकस ऑन द ईयर 2026. एंड फिर मुझे पूछेंगे कि सर प्लीज कैन यू गिव मी अ 1 year प्लान टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. फिर 3 महीने बीतेंगे एंड देन you will ask me, can you give me a 6 months plan again to crack this examination, and the cycle goes on. This is, my dear friends, a very bad cycle of procrastination जिससे कि आपको अपने आप को बाहर निकालना है. But today when a lot of people are asking this question, a lot of students have been asking this question to me, that can I still clear the examination in the given time provided that the notification will be released in the month of June 2025? So my answer is yes, you can. My answer is yes, you can. And this I am not saying to promote my course. You know that I never promote my course in my classes. My whole objective is to guide you, is to be with you during the entire journey. तो कैसे, मैं आपको ये भी बताऊंगा that how is it possible to crack the examination in the given period of time. चलिए, और मैंने बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने एग्जाम निकाला है, मैंने देखा है कि 4-5 महीने, 3-4 महीने की प्रिपरेशन में दे हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन विद द राइट स्ट्रैटेजी. All you need is a right strategy. Of course, I'm not going to discuss, I'm not going to tell you a detailed, I'm not going to give you a detailed plan, but I am going to explain you today how you can crack this examination in the given period of time. Let's start. First of all, let's try and understand the timeline. Understand the timeline. Let's say it's 20th of March today, right? It's 20th of March today. और मान लेते हैं that the notification will hit on 15th of June. ठीक है, तो हमारे पास लगभग 3 से 4 महीने हैं अभी, राइट? सो ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द नोटिफिकेशन इज नॉट आउट, you need to focus on syllabus completion and revision. You need to focus on syllabus completion and revision, and trust me, the given amount of time is more than enough to complete the syllabus of both phase 1 and phase 2. syllabus बहुत ज्यादा नहीं है, वो लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? And when the notification will be released, post notification, you will have to focus on intense revision and mock test, because after notification also you are going to get around 1.5 months for phase 1, and between phase 1 and phase 2 you are going to get around 25 to 30 days. ठीक है ना? सो वो वाले 2 महीने होंगे, उसका भी तो यूज करना है कि उसको छोड़ देना है. 2 से 2.5 महीने होंगे बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द फेज 2. 2 से 2.5 महीने होंगे भाई, उसका भी तो इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है. नाउ हाउ यू विल से, भाई आपने तो कह दिया 20 मार्च से 15 जून के बीच में सिलेबस कंप्लीट कर लो. कैसे कर लें ये तो बताओ. बता रहा हूं, डोंट वरी. देखो भाई, ये छोटा सा मैंने एक ब्रेक करा है आपके टाइमलाइन को. सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज 20th मार्च टू 25th ऑफ अप्रैल, यानी कि 35 डेज, 36 डेज आर देयर. In this particular time you can complete the syllabus of, you can focus on the syllabus of finance and quant. Now you have to divide your day into 2 parts. ठीक है, मैं ये बार बार अपनी क्लासेस में बता चुका हूं. You have to divide your day into 2 parts, one morning session and one evening session, right? Now in the morning you can either do phase 2 or you can either do phase 1, and in the evening again either phase 1 or phase 2, कोई भी एक सब्जेक्ट. ठीक है, फेज 1 में शाम को करने के लिए इसलिए बोलता हूं बिकॉज दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो उसमें अगर हमें नींद भी आ रही होती है तो काम बन जाता है. सुबह सुबह अगर आप फ्रेश माइंड से फेज 2 पढ़ोगे, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ईएसआई, तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने में मदद होगी. ठीक है, एंड ये इन दोनों के साथ आपको एक चीज और ऐड करनी है, दैट इज करंट अफेयर्स. ठीक है, सो 1 से 1.5 घंटा सुबह मॉर्निंग, 1 से 1.5 घंटा
शाम को इवनिंग, और प्लस 1 घंटा करंट अफेयर्स। तो मतलब अगर ये 4-5 घंटे आप निकाल सकते हो, विच ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली 25 अप्रैल को आपका फाइनेंस और क्वांट हो गया। फिर 26 अप्रैल से यू विल बी स्टार्टिंग 28 मई तक मैनेजमेंट एंड रीजनिंग, ठीक है। अगेन यू विल हैव अराउंड 25 days, and I believe 25 days are enough for completing the syllabus of management and reasoning, provided that you have the resources in your hand today. अगर आज भी आपको सिलेबस नहीं पता, अगर आज भी आपको PYPs नहीं पता, अगर आज भी आप रिसोर्सेज में जगल कर रहे हैं, then of course it will be very difficult for you following this timeline. I am assuming that you have understood the syllabus, you have gone through the PYPs, ठीक है। Even if you are standing at 0, you can crack the examination following this timeline. उसके बाद 21st May to 15th of June, यानी कि again 25 days, you will have to cover the syllabus of ESI, the reports and the government schemes. Now I have given less amount of time to the static ESI because they do not ask a lot of questions from ESI static. So from ESI static, you have to cover only those important, you have to cover only the important chapters like national income, like poverty, like education तो syllabus ही हट गया अब, like agriculture. Basically when you are going through the agriculture chapter, you just have to have an overview of Indian agriculture since independence, that's it, so that if there would be any descriptive question, you are able to write it. Okay, तो स्मार्ट स्टडी करनी है तभी हो पाएगा। इस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में अगर आप गधे वाली मेहनत करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओनली द स्मार्ट स्टडी एंड राइट अप्रोच कैन लीड यू टू द चेयर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। और पोस्ट नोटिफिकेशन अगेन आपको क्या करना है, रिवीजन और मॉक टेस्ट करने हैं। और क्या आपको लगता है कि पोस्ट नोटिफिकेशन यानी कि जो 2 महीने होंगे उसमें सिर्फ आप रिवीजन और मॉक टेस्ट करोगे? भाई वहां पे भी आपको टाइम मिलेगा बहुत, वहां पे भी आपको टाइम मिलेगा बहुत, ऑल्दो आपका सिलेबस जो है वो 1 से 2 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड दिस टाइमलाइन व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग इज नॉट ओनली फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यू हैव टू डिवोट द वीकेंड्स फॉर रिवीजन एज वेल, because assuming, let's say that you have started from today and you are covering the first chapter of finance, and if you will revise it post notification, वो 0 हो चुका होगा भैया, 0 हो चुका होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में ही समझाया था कि कैसे आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है ताकि आप चीजों को अपने टिप्स पे रख सके। रिवीजन इज द की माय डियर फ्रेंड्स। 10 चीजें मत करो, 2 चीजें करो, बट वो 2 ऐसी होनी चाहिए कि आपके अगर एग्जाम में आए तो आपका काम बन जाए, ठीक है। इन सब के साथ आपको ध्यान रखना है दैट यू डोंट हैव टू फॉरगेट द करंट अफेयर्स। रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, विच आर करंट अफेयर्स 3 है जो कि आपको फेज 1 और फेज 2 दोनों मंथ के लिए, दोनों के लिए करना है। जनरल करंट अफेयर्स, पीआईबी करंट अफेयर्स एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। जनरल करंट अफेयर्स मैगजीन इज अवेलेबल इन द कोर्स, पीआईबी करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स का भी सब कुछ कोर्स के अंदर है, और यूट्यूब पे भी मैं दे ही रहा हूं सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट में मैं आपको कुछ की टू डूज बता देता हूं जो कि आपको इस टाइमलाइन के साथ फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बता दिया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस, दैट वन सेकेंड, या द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट द एक्टिव रिवीजन मस्ट गो ऑन। जो एक्टिव रिवीजन है वो करते रहना है। अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया तो फॉरगेट दिस टाइमलाइन, फॉरगेट दिस एग्जाम, फॉरगेट मी, फॉरगेट दिस प्लेटफॉर्म, फॉरगेट योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। स्टार्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम फेब्रुअरी। अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कब से करंट अफेयर्स शुरू करना है, कब से करना है। चलो मैं आप बता ही रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, फेब्रुअरी से शुरू करो। और आज अगर प्रिपरेशन शुरू करना शुरू कर रहे हो तो आज से करो, और बैकलॉग कवर करो पहले मार्च का, और अगर टाइम मिले तो फेब्रुअरी का। ऑलराइट, don't watch all the videos, PDFs are good to go. If you are enrolled in any particular course, you don't have to watch all the live classes, all the recorded lectures. If you can manage it through the PDFs, that is good to go. Even I am saying कि अगर आप PIB की वीडियोस देख रहे हैं तो उसको रिवाइज करते वक्त दोबारा से कभी वीडियो मत देखना, उसको PDF से रिवाइज करो ना भाई, ठीक है। एंड इन सम टॉपिक्स जैसे करंट अफेयर्स है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं जनरल करंट अफेयर्स, do not watch the videos and do not waste the time. You can read it through the PDFs and revise it again and again. That will also work, no? Practice questions are a must. Now this is what is this? Practice questions are a must. क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं, आप कोई चीज पढ़ लो, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग द चैप्टर लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है, और लेट्स से यू आर स्टडिंग रेगुलेटरी बॉडीज फ्रॉम फाइनेंस। भाई आपने पढ़ लिया, बट क्या आपने टेस्ट किया कि आपने जो पढ़ा
वो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नहीं किया। तो क्या एग्जाम में आपने पढ़ लिया, यही आपकी जजमेंट है, यही आपसे एग्जाम क्रैक करा देगा? ऑफ कोर्स नॉट. In the examination, you'll have to solve the questions. So you have to practice questions. You have to do that. ठीक है. And last but not the least, start answer writing as well. Please do not wait कि phase 1 हो जाएगा और जब हमारा phase 1 निकल जाएगा then we will be starting the answer writing. Answer writing is not a 1 day, 1 week or 1 month game. It's a long process and you have to follow that process to be a pro in the answer writing. Alright guys, I hope you have understood that you can still clear the examination if you follow this timeline that I have discussed. If you have any particular query, any thing that you want to ask, you can follow me at Mashi Manish. I will be clarifying all your doubts. And if you want to go with the course, बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या कर रहे हैं, जाके कोर्स खरीद लें ऐसे ही. अबे इतना पैसा है तुम्हारे पास तो मेरे को दे दो. यूज द कूपन कोड मनीष नाम का कूपन कोड लगा लो, यू विल हैव एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ठीक है. चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई विल सी यू इन सम अदर guidance session. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.